फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ऑन दिस कैट 2021 स्लॉट 1 DILR क्वेश्चंस। दोस्तों, प्रो टैलेंट का एम रहता है दैट वी ट्राई टू प्रोवाइड यू quality education to the remotest part of the country, especially for MBA entrance. If you are, let's say, planning for MBA entrance, you are graduate and you are looking at CAT and you want to score more, I will strongly suggest everyone to be part of Pro Talent, because in this, you can say, content, in this preparation course, we ensure that, you can say, the kind of method we adopt is to improve your scoring potential. Your scoring potential depends on learning varieties of the methods of cracking a problem. A problem solving skill is very crucial for your DI and LR. ठीक है? And problem solving skills involve so many skills, not just mathematical skill, but analytical skill, critical thinking ability, logical connections. So many capabilities are needed, and that is why you have to be with Pro Talent, because Pro Talent understands the need of all these skills to be connected and not just merely solving a question but helping you to improve that capability. Okay, so दोस्तों, if you know some of your friends who are preparing for IIM CAT, ठीक है, don't miss out to share this video. You subscribe to our channel, ask your friends to subscribe our channel, make sure that you join our test series, our classroom courses, our online courses. They are wonderful. They are going to change your destiny for sure. Okay, let's start to solve this CAT 2021 slot 1. I'm going to cover all 3 slots, my dear students. ठीक है, there is a strategy which is needed to attempt this slot based questions. ठीक है, you know, CAT 2021 in DILR had, you can say, 20 questions, you can say, from DILR, and there were 40 minutes. ठीक है, they were in, you can say, 4 sets, 6, 6, 4, 4. 6 questions के 2 sets, 4 questions के 2 sets. So 6, 6, 4, 4. ठीक है. Now, obviously, when you know 6, 6, 4, 4, you automatically understand that the question with 6 questions or the set with 6 questions will be longish, will involve more calculation, will take more time. Okay, and the set with 4 questions will be less time consuming. That's the first part. Second important part, ठीक है दोस्तों, कौन से क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूं? क्या मैं again से सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं? नहीं, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है that the people who are looking at 99 percentile, उनको कंपल्सरीली 4, 4 और 6 करना बनता है। जो लोग 99 के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, द पीपल हु आर टारगेटिंग, लेट अस से 90 प्लस, दे शुड बी इधर 6 प्लस 4 के रेंज में होंगे। दैट मीन्स 10 प्लस क्वेश्चंस आने चाहिए, या दे आर एबल टू डू 4 प्लस 4, और बाकी जो 6 में से कोई एक आध सेट होगा, उसमें से कुछ आधे अधूरे क्वेश्चंस कर लिए। एंड द पीपल हु आर लुकिंग एट 80 प्लस, ठीक है, दे शुड ओनली डू 4 प्लस 4, दैट्स इट। दे हैव टू बी वेरी कूल एंड काम, ठीक है, दे शुड नॉट कमिट एनी मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। ये स्ट्रेटेजी वाली पार्ट में अलग कोई वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा, पर आज मैं आपके मन में ये एक विचार डालने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। आई हैव 4 का सेट। ओके, सो आई एम जस्ट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, बिकॉज मेरा काम है यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देना, समझाना कि किस तरीके से DILR के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, that is what I'm going to do. Okay, now interestingly, there may be some of you who may feel that you can say the font size is not visible to you. Then I will suggest go to protalentdigital.com. ठीक है, I'm going to put a direct link of, you can say, that particular you can say section test. आप डायरेक्टली उसको खोलिए और ये वीडियो साथ में देखिए, पॉसिबल इट विल हेल्प यू, ठीक है, टू इंप्रूव ऑन योर कैपेबिलिटीज। ओके, बिकॉज यू कैन रीड द डेटा। ओके, रीडिंग डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, इट सेज हॉरिजॉन्टल बार इन द अबव डायग्राम रिप्रेजेंट 2020 aggregate sales in rupee million. Okay, so this is sales in rupee million of a company for different categories of product. ठीक है, top 4 product subcategories are bookcases, chair, furnishing, tables belong to furniture product category. These are subcategories. So bookcases, chair, furnishing,
and table. Okay, this is furniture category. The bottom four subcategories, that is accessories, copiers, machines and phones, ठीक है, they belong to technology category, while all other product subcategories belong to office supply. Okay, so these are the rest of them are office supply. Okay, ठीक है, for each of the product subcategories there is vertical line indicating sales of corresponding subcategory in 2019. Okay, so they said the data is of 2020, while there's a vertical line which is visible to me, ठीक है, every one of you can see this, it is visible to us, ठीक है, and that is 2019 का data. Okay, so if I talk about bookcases, I'm here, ठीक है, this number is approximately 2.2 के आजू बाजू, which is of 2020 का data, and if I'm here, so this is approximately 1.9, that is a data of 2019. Okay, looks okay, very easy for me to understand the data, it's not very complex. So as and when I will require data, I will find out the value of it. Okay, अभी तो मुझे समझ में आ गया. Let me go to the question. Okay, question number 1, what is the total sales in 2019 from products in office supplies category? Now I know my office supplies, ठीक है, अभी हमने देखा था the technology category is last 4, फर्नीचर कैटेगरीज ऊपर वाला, सो बीच में बचा वो आपका ऑफिस सप्लाई बचा. सो ऑफिस सप्लाई इज फ्रॉम बाइंडर टू सप्लाईज, और मुझे चाहिए 2019 का डेटा एंड आई नीड टोटल. ओके, आई नीड टोटल. सो दिस इज, आई स्टार्ट विद बाइंडर फर्स्ट. बाइंडर आई एम गेटिंग 3.5 है, उसके आगे कुछ है तो आई विल टेक 3.6. ठीक है, Art is approximately 0.5, उससे छोटा है, but I will still take 0.5 because the numbers are not very far, but they are reasonably far. Okay, appliances is 2 से थोड़ा कम, which is 1.9. Okay, envelope 2019 में होना चाहिए था ये approximately 0.4 के आजू बाजू. ठीक है, fasteners होने चाहिए थे 0.1 के आजू बाजू. ठीक है, labels होने चाहिए थे 0.2, पेपर इज एग्जैक्टली 1.5. ठीक है, स्टोरेज इज बिल्कुल मिडल में, इट इज 4.25 एंड सप्लाई इज 1.05 के आजू बाजू कुछ. ओके, लेट मी टेक दिस. ओके, आई एम एडिंग ऑल दिस. ठीक है, चलिए, ग्रेट. 5 + 5 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 + 1 7 + 5 12, 12 + 9 will make it to 21. 21 + 5 25, 25 + 1 is 26. ठीक है, 26 + 2 will make it to 28 + 5 31, 33. 3 carry forward. 3 + 3 6 7 8 12 + 1 13. So I'm approximately at 13.3 के आजू बाजू, which I have crossed this 12.5 का barrier and I am at 13.5, which will be nearest to me, and that's what my answer is. ठीक है, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में शायद ये मुद्दा हो सकता है कि सर ये अगर मेरा अप्रोक्सीमेशन कुछ गलत आया तो. ठीक है, एग्रीड, मेरा मानना है कि अप्रोक्सीमेशन में गलतियां हो सकती है. कितनी गलतियां हो सकती है? कुछ नंबरों की. यू विल नॉट हैव अ बिग गैप. ठीक है, 12.5 तक का गैप मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उतना बड़ा गैप है देन यू आर नॉट बिकमिंग वेरी श्योर अबाउट द नंबर एंड यू आर पॉसिबली टेकिंग अ बिग चांस. डोंट टेक बिग चांसेस. ठीक है, ट्राई एंड रीच टू वेरी नियर टू इट. ठीक है, ओके, बहुत ज्यादा चांस न लीजिए. ठीक है, और ट्राई करिए मेरी तरीके से करने का. बिलीव मी, इट इज फॉर श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड स्टफ. ओके, चलिए, बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 2, the percentage increase in sales in a furniture category. Furniture category, ये आपके पहले 4 थे. From 2019 to 2020 is closest to. ठीक है, अब मेरे पास बहुत दूर दूर नंबर है. देखिए, in book cases the initial number is, है ना, अब आप देखिए 20%, 25%, 20% is approximately 1/5. This is 1/4.
ठीक है ना। अब आप मैं सोचूंगा कैसे, मैं सोचूंगा ऐसे कि मेरे पास ये 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी को अगर मैं डिवाइड करता हूं, ठीक है, 5 भागों में, उनमें से एक भाग मेरा आता है क्या, ठीक है। ओके, सो आप देखिए इसको अगर मैं 5 भाग में डिवाइड करूंगा ना, ठीक है, सो दिस इज 1 2 3 4, ओ नहीं तो थोड़ा सा उससे कम, ठीक है, सो 1 2, सो मैंने सही करा था क्या, ओके यस 1, उतना ही मैं लेना चाहता हूं, सो 2 3 एंड 4 लुक्स ओके, ठीक है, ये उससे कम है, 20% तो नहीं है। ओके, दिस इज ऑल्सो क्वाइट लेस देन 20%, और ये तो बहुत ही कम है, ठीक है। Obviously, this is not just 1% because there are big numbers which are coming up. ठीक है, okay, there are big numbers which are coming up. ठीक है, so for me 8% is a good take on this. Okay, I will take 8%. That's what my fast way to come to this number. 20%, 25% के लिए मुझे बड़े बड़े नंबर चाहिए, 1% के लिए बहुत, शायद ये नंबर 1% हो रहे थे, पर ये नंबर उससे थोड़ा सा बड़ा है और ये नंबर भी उसका बड़ा है, ठीक है। सो ओवरऑल बढ़ोतरी, ठीक है, is reasonably big, not just 1% but not even 20%, so that is 8% looks okay, है ना। I will definitely go by that. How many subcategories sales of 4 million or more in 2019 and registered an increase in sales in excess of 25% in 2020? So 2019 में 4 million से बड़ा सेल्स होना चाहिए. This is my 4 million का मार्क. ठीक है, कब चाहिए? 19 में. कौन सी कैटेगरी? 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है, उनमें से मुझे 25% से ज्यादा ग्रोथ चाहिए. ओके, देयर इज अ पॉसिबिलिटी हियर. देखने से देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो पक्का ही नहीं है. आई हैव अ डाउट हियर बट स्टिल आई विल कंसिडर. ठीक है, ये तो डिक्रीज हो रहा है मशीन का, तो ये तो पक्का नहीं है. तो अब मेरे पास बची, ठीक है, टोटल 3 कैटेगरी. इन 3 में से देयर इज अ पॉसिबिलिटी. लेट मी ट्राई. चेयर का टोटल डेटा 7. ओके, 7 मिलियन है. और अगर मुझे 25% चाहिए, 7 का 25%, विच इज 1/4. ओके, सो 10% ऑफ 7 इज 14 पॉइंट, मतलब अगर मैं 1/7 करूंगा, सो दैट इज यू कैन से 1/7 विल बिकम 1/7 विल बिकम 14.28. सो 2/7 करूंगा मैं, तो शायद मेरा आंसर 25 के आजू बाजू आए. ठीक है, नाउ विल दिस नंबर इज ऑफ 2, है ना. ये नंबर मेरा 2 का है कि नहीं? ये देखिए, ये पूरा 6 और 7 है, तो ये पूरा मेरा 1 बनता है. 2/7 विल बी 28%. मुझे 25% सोचना है, मतलब मेरा गैप उतना बड़ा होना चाहिए. ये 2 नंबर मेरा लेना चाहिए, तो जाकर मेरा 25 आएगा. दिस इज इवन लेस देन 1, सो देयरफॉर दिस इज डेफिनेटली नॉट 25%. समझ आया? अब देखिए, ये पूरा दो पार्ट में लूंगा ना, तो वो मेरा 1 बनता है. 6 और 7 दैट इज 1. ठीक है, मुझे चाहिए 2/7 दैट इज 28% के आजू बाजू, विच इज 25% के, मतलब 2 चाहिए. 2 लेने के लिए मुझे पूरे ये, मतलब ये 1 प्लस ये 1 ऐसे चाहिए. यहां पे मेरा कितना हो रहा है? 1 भी पूरा नहीं हो रहा है. सो देयरफॉर दिस इज फॉर श्योर नॉट एप्रोप्रिएट. ठीक है, ओके, दिस नंबर इज 5 के ऊपर है ना. 5 का 25% होना चाहिए. ठीक है, 5 का 25% विल बिकम सम अराउंड 1.25. ठीक है, 1.25 1 के ऊपर तो होना ही चाहिए. ठीक है, ये नंबर भी मेरा 1 के ऊपर नहीं है. 1 होने के लिए मुझे पूरा 2 चाहिए, जो ये भी नहीं है. सो दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट. दिस इज 7.5, 7.5 एंड दिस इज 5.25. ठीक है, दिस इज 7.25, so this is 2 upon 7.25, which will possibly make it to 25%. So there is only one category, that is phones. बाकी कोई कैटेगरी मेरी बन नहीं रही है. आपको समझ आ रहा होगा how am I doing it? When I am doing this calculation, I am not just speaking numbers in a random way. I know my base number. उस बेस नंबर का 25% के लिए कितना इंक्रीज होना चाहिए, वो इंक्रीज मैं चेक कर रहा हूं 19 और 20 के बीच में. अगर वो मुझे मिल जाता है तो मेरा आंसर है, नहीं तो आंसर नहीं है. ठीक है, चलिए, ग्रेट. क्वेश्चन नंबर 4. द इंप्रूवमेंट इंडेक्स फॉर अ कैटेगरी
is maximum percentage increase. Remember, this is about category. Is a maximum percentage increase from 1920 among its subcategory. Subcategory में percentage increase जिसका सबसे ज्यादा, that is the improvement index. ठीक है. The correct order of categories in increasing order for this improvement is increasing order में मतलब कम से सबसे बड़ा होना चाहिए. अभी हमने प्रीवियस केस में देखा कि सबसे ज्यादा हमारा फोन्स का रहा. फोन कम्स इन द टेक्नोलॉजी कैटेगरी, सो टेक्नोलॉजी विल बी एट द लास्ट. ठीक है, टेक्नोलॉजी विल बी एट द लास्ट. ठीक है, ओके, सो दैट लुक्स सी प्रीटी ओके. ठीक है, फोन सबसे बड़ा दिख रहा है. ठीक है, हाउएवर देयर मे बी सम नंबर बिकॉज वी जस्ट सॉ इट इज फॉर यू कैन से टेक्नोलॉजी में था, बट वी डिड नॉट सी अदर एरिया. ओके, बट चलिए कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं. ये पहले 4 में सबसे बड़ा दिख रहा है चेयर. बाइंडर से सप्लाई के बीच में सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है अप्लायंसेस परसेंटेज टर्म्स में. और एक्सेसरीज में जो मुझे दिख रहा है शायद एक्सेसरीज हो सकता है या फोन हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है. लेट मी चेक. ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर देखनी है ना, तो लेट अस सी इन बाइंडर एंड अप्लायंसेस. ये दो दिख रहे हैं. लेट मी चेक इन बाइंडर. बाइंडर में ये पूरा 1.25 के रेंज में आगे बढ़ा है अपॉन प्रीवियस डेटा था आपका 1.9. ठीक है, ये आपका अप्लायंसेस है सबसे बड़ा. ठीक है, बाइंडर में कितना गैप है, पूरा 1 का प्लस ये टोटल गैप है आपका 1.5 का. 1.5 का गैप है ऑन 3.6. ओके, ठीक है, सो ओके, दैट इज प्रीटी ओके. सो इन दोनों में से मुझे लग रहा है कि यही थोड़ा सा बड़ा है ना. सो दैट इज अप्लायंसेस सबसे बड़ा है इनमें से, यही बड़ा है, ये इतना बड़ा नहीं है. आई एम नॉट टेकिंग दिस. चेयर मेरे पास कितना बड़ा है, सबसे बड़ा यही है. ठीक है, ओके, और अब मेरे पास ये 2 नंबर बचे. दैट इज सम अराउंड पूरा 1.5 है ये. 1.5 ऑन 3.1. okay, this is more than 50%. ठीक है, I think this is bigger compared to phones. okay, ठीक है, okay, this is approximately 50%. ये 50% से बड़ा है. so office supply will be at the last, technology will be at second. ठीक है, furniture will be first. answer would be D. ठीक है, मैं कैसे असेस कर पा रहा हूं ये समझिए. I am able to assess this in a very simple way. I just took out some number and I am comparing those ratios. The fast way is not calculating each and every value. See which are the big number. सबसे पहले इनमें से बिग नंबर लीजिए, उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करिए, उनमें जो सबसे बड़ा है वो आपका नंबर. फिर इनमें से जो भी आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं उनको अंदर अंदर कंपेयर करिए, वो आपका बड़ा नंबर. फिर यहाँ पे आप इनमें से जो बड़ा दिख रहा है वो आपका बड़ा नंबर. फिर इन तीनों को रेशियो के मुताबिक कंपेयर करिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहां पे स्किल जो आपको सीखनी है वो है रेशियो को कंपेयर करना. अगर आप रेशियो को कंपेयर करने के काबिल हैं तो आपका काम बहुत तेज बनेगा. आई एम एबल टू डू इट. लेट मी गिव एन एग्जांपल. हाउ डिड आई कंपेयर 1.25 अपॉन 1.9 एंड 1.5 अपॉन 3.6. मैंने कैसे कंपेयर किया? ठीक है, मेरे मन में क्या चला, 3.6 था, उसका आधा करूंगा तो 1.8 होगा. ये 1.9 है, उससे थोड़ा बड़ा है. ठीक है, तो 1.5 का आधा करूंगा तो 0.75 आना चाहिए. ये तो 0.75 से बहुत ऊपर है. न्यूमरेटर मेरा बहुत ऊपर है. ठीक है, सो दैट वे मुझे इन दोनों में कंपेयर करना है तो ये नंबर मेरे लिए बहुत बड़ा बनेगा कंपेयर टू 1.5 अपॉन 36. इज दैट कंफर्टेबल? समझ आ रहा है आपको? ग्रेट. ठीक है दोस्तों, ये कंपैरिजन आपको सीखनी है, समझनी है. अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस बहुत तेजी से कर पाओगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ठीक है.